Good afternoon, students. Today's lecture is about the Programmable Interrupt Controller PIC, that is Intel 8259. First, we will study some basics about the 8259, and then I'll tell you about the features of 8259, and then we will discuss the block diagram of 8259 and how it is the operations which are performed in 8259 we'll study, and at the end we will discuss the pin diagram of 8259, right? So starting with the basics of 8259, that what was the use of 8259 and why it was designed, right? So it is basically designed to operate with processor 8085 with INTR and INTA pins. INTR is interrupt and INTA is the interrupt acknowledgement pin, right? So this controller, the programmable interrupt controller, the basic use of this interrupt controller was that as we know, the processor 8085, it has in itself 5 interrupt pins, right? The 5 hardware interrupt pins named as trap, RST 5.5, 6.5, 7.5 and INTR, right? So that was a limitation, right? So we can attach, or we can have only 5 hardware interrupts. We can send only, in that case we were only able to send the 5 hardware interrupts, right? So to remove this limitation, we use a interrupt controller here, so that we can add more interrupt lines through which we can send the interrupts, because if we have more number of input output devices, right, attached to 8085, we have more number of input output devices, so definitely we need more interrupt lines, right? So in that case, to remove the limitation, we have used this programmable interrupt controller PIC, right? Because and now you can see, just read the second point. It has limited hardware interrupts with limited interrupt priority, right? So to remove that limitation, because there were limited hardware interrupts, we have used 8259. Now in this case, no extra hardware is required to insert RST instructions, ठीक है? तो यहाँ पे कोई अलग से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? और RST इंस्ट्रक्शन हमारी जो है, जो हम अलग से और हमने इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहे हैं, ठीक है? इट ओवरकम्स द लिमिटेशंस ऑफ प्रोसेसर 8085. तो डेफिनेटली जो हमारे पास लिमिटेशन थी 5 इंटरप्ट्स वाली, उसे हम ओवरकम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है? इट कैन बी एम्प्लॉयड विद 16-bit इंटेल माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड 8086. तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं विद 8085 प्रोसेसर. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ 8259. Now we will study about the features of 8259, that what are the basic features of 8259. So the first feature is that it manages 8 interrupt requests, right? अब जैसे हमारे पास 5 हार्डवेयर इंटरप्ट लाइन ऑलरेडी थी, उसके साथ ये जो इंटरप्ट कंट्रोलर है, ये 8 और इंटरप्ट रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकता है, ठीक है? तो मैक्सिमम कितनी इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक इंटरप्ट कंट्रोलर कंट्रोल कर सकता है? 8, ठीक है? इट कैन वेक्टर एंड इंटरप्ट एनीवेयर ऑन मेमोरी मैप थ्रू प्रोग्राम कंट्रोल विदाउट एडिशनल हार्डवेयर, ठीक है? तो ये इंटरप्ट्स को लाइन अप कर सकता है. वी कैन यूज़ द डिफरेंट इंटरप्ट लाइन्स एनीवेयर विदाउट एनी एडिशनल हार्डवेयर. कोई एडिशनल हार्डवेयर हमें नहीं चाहिए, ठीक है? इट कैन सॉल्व 8 levels ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटीज़ इन अ वैरायटी ऑफ मोड्स, ठीक है? तो डिफरेंट मोड्स होते हैं, ठीक है? उसमें ये 8 levels ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटीज़ को, अब डेफिनेटली अगर मैं कह रही हूँ कि 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट ये ले सकता है, ठीक है? तो अब इन 8 अगर कोई इंटरप्ट लाइन से इंटरप्ट्स आ रही हैं, तो उन्हें रिजॉल्व भी करना होगा. अगर एक से ज़्यादा एक टाइम पे किसी एक से ज़्यादा ने इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज दी,
तो उन्हें उसे प्रायोरिटी के हिसाब से रिजॉल्व भी करना होगा कि किस इंटरप्ट को पहले लेना है और किसे बाद में लेना है। तो इसको सॉल्व करने का भी ऑलरेडी वे हमारे पास 8259 में है, ठीक है। सो इट कैन सॉल्व 8 लेवल्स ऑफ इंटरप्ट प्रायोरिटीज़, 8 लेवल्स तक इंटरप्ट प्रायोरिटीज़ को ये सॉल्व कर सकता है। With additional 8259 devices, the priority scheme can be extended to 64 levels. अब कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास, अब हमने कहा कि हमारे पास टोटल है 8 इंटरप्ट लाइंस, राइट। अब अगर हमारे पास टोटल 8 इंटरप्ट लाइंस हैं तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम हम 8 रिक्वेस्ट्स भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं कैस्केडिंग। वो कैस्केडिंग क्या है कि हर एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट के साथ अगर हम एक और आईपीसी कनेक्ट कर दें तो एक लाइन के साथ फर्दर 8 रिक्वेस्ट हम सेंड कर सकते हैं। गॉट इट? कि एक ये हमारा 8085 है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास ये हमने एक इंटरप्ट कंट्रोलर लगाया हुआ है जिसके साथ ये 8 लाइंस हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8 सपोज, ठीक है। ये 8 लाइंस हैं इसके साथ कनेक्टेड, ठीक है। अब एक इंटरप्ट प्रोग्रामेबल कंट्रोलर जो है फर्दर इसके साथ जो इसकी 8 लाइंस हैं इसके साथ फर्दर हमने एक एक आईपीसी कनेक्ट कर दिया और इसकी फर्दर 8 रिक्वेस्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैक्सिमम जो है, अब यहाँ पे 8 हैं, सो 8 × 8 विल बी 64 इंटरप्ट लाइंस, राइट। सो हम मैक्सिमम कितनी इंटरप्ट लाइंस हम यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ अप टू 64 लेवल्स, ठीक है। कि फर्दर हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसे हम कह देते हैं, जब इस चीज़ को हम कह देते हैं, इस पर्टिकुलर थिंग को जहाँ पे हम आगे फर्दर फिर कनेक्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर थिंग को हम कह देते हैं कैस्केडिंग, ठीक है। अगर कैस्केडिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को हम दिस थिंग वी कॉल एज कैस्केडिंग। तो मैक्सिमम जो है कितनी हो सकती हैं? 64 लेवल्स तक, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ 8259. नाउ वी मूव फर्दर टू द block diagram of 8259. Now in the block diagram, as you can see, now here we have the control logic. पहले मैं आपको पार्ट्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं ब्लॉक डायग्राम के। फर्स्ट इज़ योर कंट्रोल लॉजिक, देन इज़ योर इंटरप्ट रजिस्टर रेगुलेटर, द शॉर्ट फॉर्म इज़ IRR. नेक्स्ट इज़ योर प्रायोरिटी रिजॉल्वर, इंटरप्ट, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, इट इज़ इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, राइट, interrupt request register, IRR. Then the other one is the priority resolver. This is in service register. This is your interrupt mask register. Here comes the data bus buffer, read write control and the cascade buffer / comparator, ठीक है। अब मैं आपको 1 by 1 इनके पार्ट्स के बारे में समझा रही हूँ कि जो पहली चीज़ है, कंट्रोल लॉजिक से हम स्टार्ट होते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा 8259 है इसे हम इंटरफेस करते हैं टू 8085। इसकी जो इंटरफेसिंग है वो किन पिन्स के थ्रू होती है? थ्रू INTA एंड INTR, ठीक है। तो 8085 के पास जब हमने कोई इंटरप्ट भेजनी है तो हम किसके थ्रू भेजेंगे? वी विल सेंड थ्रू INTR पिन, ठीक है, टू द प्रोसेसर। एंड अब 8085 ने इन द मीन टाइम इट विल स्टॉप, या फिर ये होल्ड पे लगा देगा, जो भी ये ऑलरेडी इट वाज डूइंग द थिंग्स, जो भी ये कर रहा था, इट विल कीप दोज थिंग्स ऑन होल्ड एंड इट विल टेक अप द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द इट विल टेक अप द रिक्वेस्ट, ठीक है। जो भी इंटरप्ट है वो ये कंसिडर करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसने रिक्वेस्ट ले ली, ठीक है, और ये वापस क्या सेंड करेगा? हमें एक INTA सिग्नल के थ्रू इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ये सेंड करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अब ये बेसिकली इंटरप्ट जो है ये किस तरह से सेंड की जाती है, उसके लिए हमारे पास ये 3 ब्लॉक्स हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज। फर्स्ट इज़ द इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर,
अब ये इंटरप्ट्स जो हैं वो ये हमारे 8 रिक्वेस्ट पिन्स हैं, ठीक है। ये हमारे मतलब यहाँ पे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फर्दर कनेक्टेड हैं ऑन दी पिन्स IR0 टू IR7, 8 पिन्स हैं हमारे पास, राइट। सो दीज विल सेंड द रिक्वेस्ट ऑन इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर विच इज़ आर IRR, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वेस्ट रजिस्टर जो हमारे पास आए हैं, इसके बाद अब क्योंकि एक टाइम पे एक से ज़्यादा पिन से भी रिक्वेस्ट आ सकती है, सपोज़ IR0 एंड IR5 ने दोनों ने सेंड की, ठीक है। अब इनकी प्रायोरिटी जो है कि किस रिक्वेस्ट को पहले प्रोसेसर के पास भेजना है, ठीक है, उस चीज़ को कौन रिजॉल्व करेगा? प्रायोरिटी रिजॉल्वर सॉल्व करेगा, ठीक है। प्रायोरिटी रिजॉल्वर ने ये जो प्रॉब्लम है इसे रिजॉल्व करना है, ठीक है, और जिस इंटरप्ट को उसने पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, उसे वो सेंड कर देगा ISR में। ISR में कौन सी रिक्वेस्ट होगी? जो इस टाइम पे वो प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है, जिसके लिए उसने INTR सिग्नल प्रोसेसर को भेजा होगा, ठीक है। वो हमारी जो करंट इंस्ट्रक्शन जो करंट इंटरप्ट होगी जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमारी ISR में होगी, और बाकी की इंटरप्ट्स को मास्क कर दिया जाता है थ्रू इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ठीक है। एक बार सारी प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारी जो रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ से आएंगी IR0 से IR7 तक। अगर एक से ज़्यादा या 2 या 3 जितनी भी आएंगी वो कहाँ पे जाएंगी? प्रायोरिटी रिजॉल्वर में जाएंगी, वहाँ पे उनकी प्रायोरिटी डिसाइड होगी, और जिसे हमने अभी कंसिडर करना है फॉर प्रोसेसिंग उसे हम ISR में सेंड करेंगे, और बाकी की जो इंटरप्ट्स होंगी, ठीक है, उन्हें हम मास्क कर देंगे थ्रू इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, ठीक है। इनकी जो डिटेल्स हैं, इनकी जो थ्योरी है वो आपके पास जो नोट्स मैंने बुक में से स्क्रीनशॉट लेके सेंड किया वहाँ से आप इनकी डिटेल्स पढ़ लेना, ठीक है। वो आगे मैं आपके साथ डिस्कस भी कर लूँगी जब पिन डायग्राम, तो वहाँ से इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको समझाने का ब्रीफ काम कर रही हूँ। इसके बाद आ गया आपका डेटा बस बफर। अब डेटा बस बफर क्या है कि अब हमने कोई रिक्वेस्ट सेंड कर दी प्रोसेसर को, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट जो है, अब जो ISR जो है इसमें हमारी कौन सी रिक्वेस्ट पड़ी है? जो अभी हमने प्रोसेस करनी है, ठीक है। अब जो ये रिक्वेस्ट है इसके लिए हम INTR सिग्नल सेंड करेंगे, ठीक है। 8085 ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी कि ठीक है अभी मैं आपकी इस इंटरप्ट को प्रोसेस करना शुरू करता हूँ, ठीक है। उसके लिए अब प्रोसेस करने के लिए डेफिनेटली वी नीड सम डेटा फॉर दैट। हमें कोई निमोनिक चाहिए, निमोनिक कोड्स चाहिए, ऑप कोड्स चाहिए, तो वो कहाँ से रिसीव होंगे? हमारे पास डेटा बस बफर से, ठीक है। अब यहाँ से हमें डेटा रिसीव होगा उस इंटरप्ट को प्रोसेस करने के लिए। ये हमारा रीड राइट कंट्रोल है जिसमें हमारे पास सिग्नल है रीड, ठीक है, रीड फॉर रीडिंग द डेटा, राइट फॉर राइटिंग द डेटा बैक, एंड A0 इज़ द एडिशनल कंट्रोल यहाँ पे एक होता है जो कि यूज़ होता है विद रीड एंड राइट, ठीक है। जो हमारा रीड है बेसिकली जब भी इसके पिन पे लो होगा तो ये इनेबल कर देगा इंटेल 8259 को टू सेंड वेरियस स्टेटस सिग्नल्स ऑन द डेटा बस फॉर द CPU, और जब राइट सिग्नल हमारा लो होगा तो ये इनेबल कर देगा 8259 को टू एक्सेप्ट द कमांड वर्ड फ्रॉम द CPU, ठीक है। जब हमने CPU से कुछ लेना है तो राइट होगा, कुछ राइट हमने राइट सेंड करना है टू द CPU तो रीड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे आगे A0 इज़ द एड्रेस लाइन। ये हम यूज़ करते हैं विद रीड राइट एंड द चिप सेलेक्ट, रीड राइट एंड चिप सेलेक्ट इनके साथ हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है टू इंटरप्ट कमांड वर्ड्स जो कि CPU राइट करता है, एंड द स्टेटस जो भी CPU का हम रीड करना चाहते हैं उसे रीड करने के लिए हमें हेल्प करता है A0, ठीक है, कि हमें रीड करना है या राइट करना है, उस चीज़ को जज कौन करता है? A0 पिन जज करता है। इसके बाद हमारे पास पिन है चिप सेलेक्ट, ठीक है। एज यूजुअल कैस्केड बफर एंड कंपैरेटर। अब ये कैस्केडिंग वाला कंसेप्ट मैंने आपको पहले समझाया कि जहाँ पे हम
आईपीसी जो हमारे पास हैं, सॉरी, जो जितने भी हमारे पास प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर्स हैं उन्हें हम इकट्ठा लगा दें, इकट्ठा करके मतलब एक से ज़्यादा हमने लगा दिए तो उसे हम कह देंगे कैस्केडिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैस 0, 1 एंड 2 ये हमारे पास पिन्स हैं फॉर डूइंग द कैस्केडिंग। और ये SP और EN है पिन। SP इज़ फॉर स्लेव प्रोग्राम एंड EN इज़ द इनेबल बफर। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द कैस्केड कंट्रोल ओनली, ठीक है। कि कौन सा हमारा अब जब हमारे पास PIC है, ठीक है, बिकॉज जो हमारे पास मेन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो PIC है प्रोग्रामेबल कंट्रोलर, ये हमारा मेन है, तो ये हमारा होगा मास्टर, ठीक है, और ये बाकी के क्या होंगे, स्लेव होंगे। तो इस चीज़ को बताने के लिए कि कौन सा हमारा इंटरप्ट कंट्रोलर मास्टर है और कौन सा स्लेव है, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ये वाला पेन यूज़ करते हैं, स्लेव प्रोग्राम, एंड सेकेंड इज़ योर स्लैश इनेबल बफर, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8259। अब इसके बाद हमने डिस्कस करना है कि ये जो 8259 है इसकी ये ऑपरेशन कैसे करता है, सारा जो जब एक रिक्वेस्ट आती है या हमने भेजनी है तो उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कैसे होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स दी ऑपरेशन ऑफ 8259। अब बेसिकली होता क्या है, जब एक से ज़्यादा कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन हमारे पास आएगी, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक से ज़्यादा कोई भी रिक्वेस्ट आ गई तो सबसे पहले वो जाएगा प्रायोरिटी रिजॉल्वर में, ठीक है, वहाँ पे उसकी जो भी प्रायोरिटी है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब जो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो मूव करेगा ISR में और बाकी की प्रायोरिटीज़ मास्क हो जाएंगी। वो जब सबसे पहले जो हमारे पास ISR में आई उसे हम सेंड करेंगे थ्रू IRTR टू द प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा थ्रू INTA पिन, ठीक है। अब INTA पिन के थ्रू जब उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी, इसके बाद आफ्टर INTA ऑपकोड विल बी सेंड टू कॉल द इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस, ठीक है। अब डेटा बस के ऊपर हमारे पास ऑपकोड जो होगा वो प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, टू कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भी कॉल इंस्ट्रक्शन हमने है उसका ऑपकोड जो है वो आ जाएगा हमारा डेटा बस पे, ठीक है। अब ड्यू टू दिस कॉल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो हमारा 8085 है वो 2 और INTA सिग्नल सेंड करता है। पहला जो INTA सिग्नल है वो बेसिकली सेंड करता है टू प्लेस द लोअर एड्रेस ऑन द डेटा बस, ठीक है। और फिर एक दूसरा INTA सिग्नल सेंड करता है टू प्लेस द हायर एड्रेस, ठीक है। अब हमारे पास जो एड्रेस लाइंस हैं आपको ये मालूम है कि जो हमारी डेटा बस है वो 8 बिट्स की है, ठीक है, और जो हमारा एड्रेस होता है वो 16 बिट्स का होता है। तो उसे बेसिकली वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सेंड कर रहा है, ठीक है। पहले उसने 8 लोअर बिट सेंड कर दी, उसके बाद उसने 8 हायर बिट सेंड कर दी, ठीक है। 2 INTA सिग्नल्स अलग से सेंड किए उसने, ठीक है। अब उसके बाद उसने अब यहाँ पे हमारे पास एड्रेस आ गया तो हमारी जो प्रोसेसिंग है इंटरप्ट की वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जब फिर दोबारा जो प्रोग्राम सीक्वेंस है इट इज़ नाउ ट्रांसफ़र टू अ स्पेसिफाइड लोकेशन जो कि कॉल इंस्ट्रक्शन में हमें सेंड की गई थी, ठीक है। वहाँ पे अब डेफिनेटली कॉल के बाद यहाँ पे हमारा कुछ एड्रेस आएगा, ये एड्रेस हमारे पास रिसीव हो गया, 8 पहले लोअर बिट्स आ गई फिर 8 हायर बिट्स आ गई। अब ये जो एड्रेस है इस पे ये कॉल इंस्ट्रक्शन जाएगी, उसे प्रोसेस करेगी और वापस जब कंप्लीट हो गई तो वापस जो कंट्रोल है दोबारा से प्रायोरिटी रिजॉल्वर के पास आएगा, यहाँ से नेक्स्ट जिसकी प्रायोरिटी होगी वो ISR में मूव करेगा, फिर उसके लिए दोबारा से कॉल इंस्ट्रक्शन भेजी जाएगी, ठीक है। सॉरी ऑपकोड जो है कॉल इंस्ट्रक्शन का वो आएगा हमारे पास डेटा बस बफर में, ठीक है। और वहाँ से फिर एड्रेस 2 INTA सिग्नल्स दोबारा से जनरेट होंगे, ठीक है। फर्स्ट INTA सिग्नल टू प्लेस द लोअर एड्रेस, सेकेंड INTA सिग्नल टू प्लेस द हायर एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जो एड्रेस आया वहाँ पे जाके उस इंटरप्ट की जो इंटरप्ट को रिजॉल्व किया जाएगा एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है।
तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऑपरेशन में लिखी हुई है. यू कैन रीड वंस दैट वन और मोर इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन्स गो हाई ऑन सोर्स. ठीक है. सो टू रिजॉल्व द प्रायोरिटी वी हैव रिजॉल्व द प्रायोरिटी एंड सेंड द INTR टू द प्रोसेसर. इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दी, प्रोसेसर ने एक्नॉलेजमेंट भेज दी. आफ्टर INTA ऑपकोड टू कॉल इंस्ट्रक्शन इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस. जो भी ऑपकोड है कॉल इंस्ट्रक्शन का उसे डेटा बस पे हमने प्लेस कर दिया. अब कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, 2 और INTA सिग्नल्स जनरेट करेगी. पहला INTA लोअर एड्रेस के लिए, दूसरा INTA हायर एड्रेस के लिए. अब हमारे पास कॉल के साथ साथ क्या आ गया, हमारा एड्रेस भी आ गया. ठीक है. अब जो भी ये स्पेसिफाइड एड्रेस होगा वहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम सीक्वेंस है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा. किस पे, जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, एड्रेस बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन. ठीक है जी. सो दिस इज़ हाउ 8259 ऑपरेट्स. राइट. अब इसके बाद फर्दर जो हमने एक चीज़ डिस्कस करनी है. अब ये चीज़ हमने ये तो 8257 दिस इज़ डन, दिस वन. ठीक है. अब इसके बाद जो पिन डायग्राम है, ठीक है, 8259 का. नाउ यू कैन सी ब्लॉक डायग्राम कर लिया, ये पिन डायग्राम कर लिया, क्योंकि पेन्स आर सेम, कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज़ है. सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे आपको पिन डायग्राम की एक सीक्वेंस आपको याद रखनी होगी कि सबसे पहले हमारे पास आ गई सीक्वेंस में दैट इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम, हमारे पास डेटा बस आ गई D0 टू D7, फिर चिप सेलेक्ट आ गया, रीड राइट एंड A0 सिग्नल आ गया. ठीक है. तो ये तो हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया. कौन सा, ये दिस वन इज़ योर रीड राइट कंट्रोल. ठीक है. दिस वन इज़ योर डेटा बस बफर. ठीक है, जो ब्लॉक डायग्राम में था. इसके बाद ये कैस्केडिंग 0 to 2, ये हमारा कैस्केड बफर आ गया. और ये हमारे पास आ गया SP एंड EN पिन, जो हमारा स्लेव प्रोग्राम एंड द इनेबल बफर पिन था. ठीक है. सो दिस इज़ योर कंप्लीट कैस्केड बफर एंड कंपैरेटर. ये हमारे पास आ गई रिक्वेस्ट. ठीक है. IRR इंटरप्ट रजिस्टर रेगुलेटर. ठीक है. दीज आर द वोल्टेज पिन्स INTA एंड INTA. ठीक है. ये 2 पिन्स हैं फॉर सेंडिंग द रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द इंटरप्ट. ठीक है. और ये इनके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई हैं इन द पिन डायग्राम, वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है. सो आई वोंट रिपीट द सेम थिंग अगैन ओवर हेयर. इसके बाद एक चीज़ जो और आपके साथ डिस्कस करनी थी वो है कि दिस वन इंटरफेसिंग ऑफ 8259 विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. अब अगर हमने, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो 8085 है, इसके साथ हम इंटरफेसिंग करते हैं ऑफ 8259. ठीक है. इसके साथ हम, अब यहाँ पे इन्होंने 2 इनपुट डिवाइसेस लगाए हुए हैं. हम मैक्सिमम कितने इनपुट आउटपुट डिवाइस अटैच कर सकते हैं, 8. ठीक है. 8259 के साथ हम मैक्सिमम वी कैन इंटरटेन 8 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू ट्रांसफ़र द डेटा यूजिंग इंटरप्ट टेक्निक. ठीक है. इफ़ देयर आर मोर देन 8 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूजिंग इंटरप्ट, तो हम 2 8251 ICs को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, सच ए कनेक्शन इज़ कॉल्ड कैस्केडिंग. ठीक है. और ये चीज़ मैं आपको बता दूँगी अप टू कितने हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं. 64 डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड एम्प्लॉइंग 8259. 2 8259 ICs यूज़ करके हम मैक्सिमम 64 डिवाइसेस तक अटैच कर सकते हैं. ठीक है. अब जो एक उसमें से हमारा मास्टर होगा और दूसरा जो हमने उसके साथ कनेक्ट किया वो हमारा स्लेव होगा. इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास SP, जो हमारे पास ये स्लेव कंट्रोलर एक सिग्नल होता है जो कि हमें इस चीज़ को हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में. ठीक है. इट इज़ यूज्ड एज आउटपुट टू इनेबल द डेटा बस बफर. ठीक है. सो दिस इज़ द इंटरफेसिंग. इट इज़ शोन ओवर हेयर दैट 8085 इज़ दिस, इट इज़ सेंडिंग द INT, और ये हमारे पास INTR पिन है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है 8259. और ये हमारे पास कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं. दिस इज़ आर सिस्टम डेटा बस विच इज़ कॉमन फॉर 8085 एंड 8259. यहाँ पे हमारी मेमोरी चिप्स कनेक्टेड हैं. ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं. ठीक है. आउटपुट डिवाइस आर ऑल्सो कनेक्टेड टू 8259 एंड इनपुट आर ऑल्सो कनेक्टेड टू 8259. ठीक है. और ये हमारे जो रजिस्टर्स हैं, इंटरनल रजिस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी हम ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि IRR है, इंटरप्ट रजिस्टर, रिक्वेस्ट रजिस्टर है,
इन सर्विस इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर में हमारे कौन कौन से होंगे, IR0 IR7 जो रिक्वेस्ट आएंगी इनिशियली वो किस में आएंगी, इसमें आएंगी। और इन सर्विस जिसे हम करंटली सर्विस कर रहे होंगे, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हमारा कहाँ पे आएगा, इन सर्विस रजिस्टर में आएगा। और मास्क रजिस्टर क्या करेगा, बाकी की जो इंटरप्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें डिसेबल कर देगा, मास्क कर देगा। सिर्फ जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है उसे इन सर्विस रजिस्टर में डालेगा, बाकियों को मास्क कर देगा, 1 बाय 1 उठाएगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल। ये आपका लेक्चर था अबाउट योर इंटरप्ट कंट्रोलर। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वी विल डिस्कस अबाउट दी प्रोग्रामेबल काउंटर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर listening.